So good afternoon. Uh, Good afternoon, ma'am. Actually, as per you, Good afternoon, ma'am. so in last class we were discussing about the uh, register banks. So so these are what we have discussed in our last class, that we are having four register banks, and each register bank have the registers from R0 to R7. And in order to select these registers, what we have to do is we have to check the value of the PSW. Okay, that is program status word. ओके सो लाइक हम बात कर रहे थे कि अगर आपको R0 में क्या करनी है, लाइक अगर आपको R0 के अंदर वैल्यू डालनी है, बैंक जीरो के R0 के अंदर वैल्यू डालनी है, तब आपको क्या वैल्यू PSW की सिलेक्ट करनी पड़ेगी। PSW रजिस्टर हमारे पास किस टाइप का होता था, दैट इज लाइक दिस। दिस इज द 8 बिट PSW रजिस्टर। तो इस PSW में लाइक दिस इज PSW पॉइंट, दिस इज PSW पॉइंट जीरो, दिस इज PSW पॉइंट वन, PSW पॉइंट टू, PSW पॉइंट थ्री। एक सेकेंड। This is the PSW point zero, PSW point one, PSW point two, PSW point three, PSW point four. So RS0 एंड RS1, ये आपके पास PSW की कौन सी पिन्स हैं, PSW पॉइंट थ्री एंड PSW पॉइंट फोर। इन दोनों की वैल्यूज को चेंज करके आपका क्या होगा, रजिस्टर बैंक सिलेक्ट होगा। ओके, लाइक अगर इसकी वैल्यू जीरो जीरो रहती है, लाइक हमने ये टेबल बनाया था, दिस इज PSW पॉइंट थ्री, दिस इज PSW पॉइंट फोर। ओके, दिस इज PSW पॉइंट थ्री, दिस इज PSW पॉइंट फोर। होल्ड फॉर अ सेकेंड। सो दिस इज PSW पॉइंट थ्री, PSW पॉइंट फोर, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू। अगर आपके पास इन दोनों की वैल्यू जीरो जीरो होगी, लाइक PSW की ये दो बिट की वैल्यू जीरो जीरो होगी, तो रजिस्टर बैंक जीरो सिलेक्ट होगा। इफ दिस वैल्यू इज जीरो वन, रजिस्टर बैंक वन, वन जीरो है तो रजिस्टर बैंक टू, एंड वन वन है तो रजिस्टर बैंक थ्री। सो डिपेंडिंग अपॉन दीज टू वैल्यूज, depending upon these two values, the particular register bank will be selected, and the value will be shifted in that particular register. Okay, like how we can define this, like I have written set bit. I am just giving you the instructions, like this: set bit PSW.4, set bit PSW.4, move R0 comma hash 99H, move R1 comma hash 55H. So what is basically this, you can further write down as 3FH. So these are some of the instructions. So as per this, first instruction is set bit PSW.4. Set bit PSW.4 means we have to set the value of this bit. Set B represents the bit. B here is representing the bit. Which bit? Because here we are dealing with single bit. Here we are dealing with single bit, not with a byte. Byte is of 8 bit. But here we are just dealing with the one bit of the PSW register, that is PSW.4. Okay. So
this is how it will work out. Like इस बिट से क्या होगी आपके पास, PSW.4, like this is, hold for a second. So the value is a set bit PSW.4. It means this value will get 1, and here we are not defining the value of PSW.3. तो बाय डिफॉल्ट उसकी वैल्यू आपके पास कौन सी हो जाएगी, दैट वैल्यू विल बी 0. ओके, so what will be the value of this register, PSW register, like PSW.4 will be 1 and PSW.3 will be 0. So it will be 1 0. And now you have to check out this table. If the value of PSW.4 is 1 and PSW.3 is 0, then the register bank 2 will be selected. Then register bank 2 will be selected. So now what we are doing is, from this instruction, setbit PSW.4, what we get is कि आपके पास कौन सा रजिस्टर बैंक सिलेक्ट होगा, रजिस्टर बैंक 2 इज सिलेक्टेड एज पर दिस इंस्ट्रक्शन. As per this instruction, as per this instruction, register bank 2 is selected. Now what what are the next instructions, like move 99H to R0, move 85H to R1, 3F to R2. तो आपके पास अब जो ये वैल्यूज मूव होंगी, तो ये कौन से रजिस्टर बैंक में होंगे, रजिस्टर बैंक 2 में होंगी. Register bank 2 is this one. Register bank 0, register bank 1, register bank 2, and so the value of R0 will be 99. यहाँ नहीं होगा आपके पास, यहाँ पर भी नहीं होगा. The value will be shifted in this register bank. That is 99. After this there is 85. 85 हो जाएगा. जो भी आपने values define किए हैं as per the program, the values will be shifted, like 3. So this is how to switch the register bank. How this program will basically comes under the switching. That is switching from the one register bank to the other register bank. Okay. So by changing the value of these two bits, PSW.3, PSW.4, you can just switch any register bank. Okay. So this is how the value will be shifted out. There is one more term, that is the stack. So we have already discussed what is stack. So stack is the temporary portion, there is a RAM in your CPU. But if you want to store any value inside the RAM for some temporary time period, okay, for some temporary purpose you want to store that particular value, so at that time the stack will comes into picture. Stack and the value will be shifted onto the stack only and only when you want to store the value for the some short period. So as we have discussed in 8085, सिमिलर टू दैट यहाँ पर भी आपके पास जब भी हम स्टैक पे वर्क करेंगे, सो सेम इंस्ट्रक्शंस विल बी देयर, लाइक द पुश इंस्ट्रक्शंस विल बी देयर एंड द पॉप इंस्ट्रक्शंस विल बी देयर. लाइक अगर हम एक छोटा सा प्रोग्राम देख लेते हैं, हाउ टू पुश द वैल्यूज ऑन टू द स्टैक एंड पॉप फ्रॉम द स्टैक. So the this program is basically considered
नंबर ऑफ एग्जाम्स, लाइक अगर आपके पास 8085 या 8051 का कुछ भी प्रोग्राम रहता तो ये कुछ लाइक टीचर्स का काफी पसंदीदा वो एक क्वेश्चन होता है कि हाउ द वैल्यूज आर बेसिकली पुश ऑन टू द स्टैक एंड द हाउ द पॉपिंग फ्रॉम द स्टैक इज बेसिकली डन एज पर द इंस्ट्रक्शंस। तो और हमारे पास जो स्टैक पॉइंटर की वैल्यू है, हाउ दैट स्टैक पॉइंटर वैल्यू विल बी चेंज्ड। ओके, हाउ दैट स्टैक पॉइंटर वैल्यू विल बी चेंज्ड। So, like there is one example we are considering over here. Like the example is move R6 comma hash 25 H 12 H. So as per these instructions, push 6, push 1 and push 4. The thing is the stack pointer is having the by default value 07, and how the value of the stack pointer will change after this particular instructions. So the first instruction is very simple, like move. But हाँ, एक और बात मैंने यहाँ पर आपको नहीं बताई है, लाइक आप 8085 में जब भी हम इंस्ट्रक्शंस करते थे, एक सेकेंड अगर मैं ना म्यूट कर रही हूँ, लाइक आज ना आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं, सो आई एम जस्ट म्यूटिंग इट। आप बता देना अगर आपको आवाज आ रही है या नहीं आ रही है। म्यूट माधुरी आर्य फॉर एवरीवन। सो सो द इंस्ट्रक्शन इज लाइक दिस। आपको इको आ रही है आवाज की मेरी? मैम आवाज ओके आ रही है। ओके, ठीक ठीक, फाइन। ओके, सो द इंस्ट्रक्शन इज लाइक मूव आर 6 कोमा हैश 25। तो मैं एक पॉइंट बता रही थी, लाइक हम 8085 में जब आप ये इंस्ट्रक्शंस करते थे ओवर देयर, यू डोंट यूज दिस हैश साइन, बट when you are using the 805 instruction 8051 instruction, then you have to, the mnemonic is somewhat different from the 8085, like you must have remembered, like आपके पास 8085, you just write down this. You need not to write the hash sign in the 8085, but while writing the program in the case of the 8051, you have to include this hash sign. Okay. So the first instruction is very simple, like move R6 comma hash 25H. That is, you have to put this value 25H hexadecimal value into this register. This register is again 8-bit register. Every register is of 8-bit, and data which we are defining over here is that is also a 8-bit data. So 25 will be moved into this register. Next is the move R1 comma hash 12H. जो 12H है that will again be copied to the R1 register. Next move R4 comma this value, that will be shifted, that will be moved into this register. These three are okay. Next is push 6. What is this? Push 6 is basically defining, this is basically defining the R6. Okay. Push 1 means push R1. Lekin, but the method for writing this instruction is like this only, like push 6, push 1, push 4. Okay. But So push 6, push 1, push 4, that is basically defining the push the value of the register R6, push the value of register R1, push the value of register R4.
सो द बाय डिफॉल्ट द वैल्यू ऑफ द स्टैक पॉइंटर इज लाइक हमने स्टडी किया था जब हम लाइक रैम लोकेशन हमने स्टडी किए थे कि आपका जो स्टैक पॉइंटर होता है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम दिस लोकेशन दैट इज एसपी इज इक्वल टू 07h. ओके, सो the SP is 07h, the starting value of the stack pointer is 07h. उसी तरीके से आपके पास जो स्टैक पॉइंटर की वैल्यू दैट गेट इंक्रीमेंटेड दैट इज 07h, 08h, 09, 0A and so on 0B. Okay, so these are the some of the stack addresses which I have defined over here, that 08, 09. So what will happen after this instruction? आपके पास ये this is the stack you are having. So what will happen after push 6 instruction? What will happen after push 1 instruction? And what will happen after push 4 instruction? Okay. After push 6, after push 1, push 4. So after push 6, like this instruction, after this push 6 instruction, the value of this R6 register will be pushed onto the stack. Onto the stack means onto these locations, onto these stack specified locations. Okay, so the value that is this 25h that will be shifted onto the stack, and that will be shifted into this location that is 08. That is after push 6 instruction, after this instruction, the RAM location, the stack RAM location that will have the 08 that will be having the value 25h. आफ्टर लाइक आपके पास जो स्टैक पॉइंटर है, स्टैक पॉइंटर की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीमेंट होती है, इट गेट इंक्रीमेंटेड बाय 1. आपके पास जो भी स्टैक एड्रेसेस हैं, लाइक आपके पास स्टैक पॉइंटर विल आल्सो बी इंक्रीमेंटेड बाय 109. इसके बाद आपके पास 25h आ चुका है. नेक्स्ट पुश 1 में भी आपके पास अब आपके पास जो स्टैक का एड्रेस है दैट विल बी 09. और 09 पे आपके पास क्या हो जाएगा, 09 पे आपके पास पुश 1 हो जाएगा दैट इज 12h. आपके पास 25h तो पहले ही है, 09 पे आपके पास क्या आ जाएगा 12h. ऐसे ही आपके पास नेक्स्ट एक और इंक्रीमेंट होगा, तो मीन्स यहाँ पर अभी आपके पास स्टैक पॉइंटर की वैल्यू क्या होगी, इस टाइम पे 08, इस टाइम पे स्टैक पॉइंटर की वैल्यू क्या होगी 09, और यहाँ पर स्टैक पॉइंटर की वैल्यू क्या होगी आपके पास 0A. दैट विल बी 25h, 12h and F3h. So this is how these instructions will work out depending upon the program, whatsoever the program that is given to you, and depending upon that program, like whatsoever the instruction is, depending upon that instruction, the program will move and the values will get moved. Like if you have to one question, like write a very simple program, this is write a program to clear the accumulator. A very simple program that we are discussing over here. The thing is, if you are getting these simple programs, आपके पास लाइक आप लैंग्वेज कोई भी डिस्कस कीजिए, मैंने पहले भी बताया था प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लॉजिक आपके पास क्या रहेगा, लॉजिक विल रिमेन द सेम. लॉजिक विल रिमेन द सेम, ओनली द like the syntax changes. When you move from one language to other, only the syntax changes, the logic remains same. So the main thing is logic, whether you are getting the logic for that particular program or not. If you are getting the logic, then that's very much fine. Okay, so like we are having the program, write a program to clear accumulator. First part is to clear accumulator, and the second part is add 3 to accumulator. Add 3 to accumulator 10 times. Add 3 to accumulator 10 times. First part is clear accumulator. Second part is add 3 to accumulator 10 times. Okay. So very simple. What you have to do is you have to clear the accumulator. आपने accumulator की वैल्यू क्या करनी है, 0 करनी है. क्लियर इज दिस, आपको क्या करना है, वैल्यू को 0 कर देना. सेकेंड पार्ट है आपको add 3 to the accumulator 10 times. लाइक आपके पास जो भी accumulator के अंदर वैल्यू है
उसमें आपको 3 ऐड करना है। 3 ऐड कितनी बारी करना है आपको? 3 को 10 बारी ऐड करना है। लाइक आपके पास आपको करना क्या है, एक्यूमुलेटर की वैल्यू 0 है, 0 में 3 ऐड कर दो, वैल्यू के आगे 0। फिर जो रिजल्ट आया उसमें दोबारा से क्या कर दो, 3 ऐड कर दो, दैट विल बी 6। 6 में 3 ऐड कर दो, दैट विल बी 9। 9 में 3 ऐड कर दो। तो इस तरीके से आपके पास ऐड 3, ऐड 3 टू एक्यूमुलेटर 10 टाइम्स। तो लाइक अब ऐड तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, लाइक आई एम शोइंग 3 मैम ऐड किया, जो रिजल्ट आ गया 3 ऐड कर दिए। मैम जो अक्यूमुलेटर को क्लियर करने के लिए कमांड यूज करते हैं, उसमें एंड कर सकते हैं जो अक्यूमुलेटर है 0 0 से। हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं आप, क्योंकि एंड क्या बेसिकली करता है, मल्टीप्लाई करता है। और जो भी आप, अगर आप उसको 0 के साथ क्या करते हैं, एंड करते हैं किसी भी वैल्यू को, तो वो 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। एंड 0 मल्टीप्लाई बाई एनीथिंग इज 0। सो यू कैन यूज द एंड इंस्ट्रक्शन फॉर क्लियरिंग द कंटेंट ऑफ द एक्यूमुलेटर, क्योंकि एंड और इंस्ट्रक्शन बेसिकली। एक्सोर भी यूज कर सकते हैं हम इसकी जगह, इसके साथ मतलब ऐसे ही रीसेट करने के लिए। एंड और एक्सोर अलग अलग मतलब रीसेट करने के तरीके हो गए ना इसके। एक्सोर से बेसिकली हमारे पास यू हैव टू चेक आउट द ट्रूथ टेबल। लाइक अगर आपके पास द वैल्यू इज 0 1 1 0 एंड द टेबल इज लाइक दिस इज द 0, if I am, this is the right truth table for the XOR gate। तो इस यहाँ पर आपके पास, ठीक है नहीं, एक्सोर का ट्रूथ टेबल, क्योंकि काफी टाइम हो गया डिजिटल किए हुए। यस मैम, जीरो सही है। जीरो। तो लाइक यहाँ पर आप नहीं कर सकते हैं। लाइक अगर आप बोले कि आप एक्यूमुलेटर के कंटेंट को, लाइक अगर आप क्या कर रहे हैं, आपके पास एक्यूमुलेटर में वैल्यू थी सपोज 0, तब आपने उसको क्या किया, एक्सोर किया किसी वैल्यू के साथ, 0 के साथ, देन द वैल्यू विल बी 0। बट इफ द केस इज 1, if the accum like if the value of accumulator is 1, अगर आपके पास accumulator की वैल्यू 1 है, उसको आप किसी दूसरी वैल्यू के साथ कर रहे हैं, तो that will may result into 1, so you can't use XOR for clearing the content of मैम कर accumulator सकते हैं but वैसे, क्योंकि अगर अक्यूमुलेटर और अक्यूमुलेटर का एक्सोर करे तो हो सकता है 0 0 0 हाँ, 1 1 अगर 0। हाँ, दैट विल अगेन, दैट डिपेंड्स अपॉन द, अगर आप दोनों की वैल्यू क्या कर रहे हैं, सेम कर रहे हैं, दैट डिपेंड्स अपॉन द लॉजिक अगेन। अगर आप दोनों की वैल्यू सेम रखेंगे, लाइक तुम बोल रहे हो कि अगर हम उस एक्यूमुलेटर की वैल्यू के साथ ही आप क्या करा दें, एक्सोर करा दें, तब आपके पास क्या हो जाएगी, वैल्यू 0 आ जाएगी। क्योंकि अगर एक्यूमुलेटर की वैल्यू आपके पास 0 है, आप दूसरी एक्सोर भी 0 के साथ आप करा रहे हो, तो वैल्यू क्या आएगी आपके पास, क्लियर हो जाएगा इन दो केसेस में। इन दो केसेस में आपके पास क्लियर हो जाएगा। बट अगर आपके पास लॉजिक आप दूसरा लेते हैं कि आपके पास यहाँ पर क्या है, 1 है, आपके पास वैल्यूज क्या है, लाइक कॉम्प्लीमेंट कर रही हैं एक एक दूसरे को, दैट इज 0 and 1, देन दैट विल नॉट रिजल्ट इनटू द 0 वैल्यू। सो दैट अगेन डिपेंड्स अपॉन द लॉजिक विच यू आर यूजिंग। ओके, गॉट इट। यस मैम। सो there are number of methods to clear the accumulator. Like it's not, you can say कि, you have to either XOR or you have to use, and that again depend upon the programmer how he wants to clear the content of the accumulator. So there are number of methods that are available by using which you can clear the accumulator. Next is, suppose you have done with clearing the value of the accumulator by using any method, whatsoever method you that is appropriate for you, you have cleared the value of the accumulator. Now the next task is कि आपको 3 3 क्या करना है, ऐड करना है। बिल्कुल सिंपल है। लाइक फिर से वो प्रोग्रामर पे डिपेंड करेगा कि उसने क्या किया, ए लिया, लाइक ए में एंड कर दिया। लाइक अभी तो हमने शायद एंड वाली इंस्ट्रक्शंस की भी नहीं है, ऐड वाली इंस्ट्रक्शंस की भी नहीं, स्टिल देयर इज वन प्रोग्राम, दैट इज व्हाई वी आर डूइंग ओवर हियर। आपके पास ए था, ए में आपने क्या कर दिया, 3 ऐड कर दिया, 3 में 3 ऐड कर दिया, आपके पास 6 आ गया। तो लाइक अगर हम इस तरीके से क्या करते हैं, प्रोग्राम को लिखते हैं, तो दैट इज बेसिकली द वेस्टेज ऑफ द मेमोरी। रिजल्ट आपके पास यहाँ पर भी वही मिलेगा, दैट इज रिक्वायर्ड एट लास्ट।
कि हमें 10 बारी 3 को ऐड करना है, आपने स्टेप बाय स्टेप क्या कर दिया, 3 ऐड करा दिया, 3 ऐड करा दिया, 3 ऐड करा दिया, यू आर कॉन्टिन्यूअसली एडिंग द वैल्यू ऑफ 3 इन द accumulator. But a good programmer is one who just use the less memory, कम मेमोरी को यूज करते हुए एक अप्रोप्रिएट, हमारे पास जब प्रोग्राम मिलता है कम इंस्ट्रक्शंस को यूज करके अगर मुझे सेम रिजल्ट मिलता है, देन दैट प्रोग्राम विल बी कंसीडर मच बेटर एज कंपेयर टू द वन which are using the large number of instructions. So though the result will be same, so you can use this method, or there is one other method by which you can do that. तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाती है, लूपिंग आ जाती है, एंड very important instruction in the 8085 microcontrollers, very very important instruction that is used, that will be used in the number of programs in case of the microcontroller, and that instruction is so like मिक्सअप हो गया है, मतलब हम काफी आगे पहुंच गए हैं कुछ स्टेप्स. So the next instruction which we will use over here is, that is this instruction, a very important instruction, that is DJNZR2 command, that is decrement and jump if not equal to 0, and jump if not equal to 0. डिक्रीमेंट कीजिए, ध्यान से सुनिए, डिक्रीमेंट कीजिए और जंप कराइए जब आपकी वैल्यू 0 के इक्वल नहीं आती है. किसकी वैल्यू वो चेक करेगा, R2 की वैल्यू चेक करेगा, और जंप कहां पर करेगा, दैट विल बी डिफाइंड ओवर हियर. ये इंस्ट्रक्शन समझ नहीं आती है तो दोबारा से पूछेंगे. दिस इज डिक्रीमेंट एंड जंप if not equal to 0. Decrement and jump if not equal to 0. जो भी रजिस्टर यहाँ पर स्पेसिफाई है, यू हैव टू पिक दैट रजिस्टर. लाइक R2 रजिस्टर इज डिफाइंड ओवर हियर. R2 में कुछ वैल्यू होगी, आपके पास 8 बिट की वैल्यू होगी, उसको आपको क्या करना है, R2 की वैल्यू लीजिए, उसको डिक्रीमेंट कीजिए. डिक्रीमेंट कर दिया, ठीक है. लाइक आपके पास R2 की वैल्यू सपोज 10 थी, 10 से हमने उसको क्या कर दिया, डिक्रीमेंट कर दिया. डिक्रीमेंट कर दिया, 1 से डिक्रीमेंट होगा, वैल्यू हो जाएगी 9. डिक्रीमेंट वैल्यू इज 9 एंड जंप इफ नॉट इक्वल टू 0. और जंप करवा दीजिए, कब जंप करवाना है, अगर आपके पास वैल्यू किसके इक्वल नहीं आती है, 0 के इक्वल नहीं आती है. लाइक आपके पास R2 की वैल्यू थी 10, स्टार्टिंग वैल्यू थी 10, आपने क्या कराया, इसका डिक्रीमेंट कराया. डिक्रीमेंट कराने के बाद आपके पास वैल्यू हो गई 9. नाउ यू हैव टू चेक वेदर दिस वैल्यू 9 इज इक्वल टू 0 और नॉट इक्वल टू 0. क्वाइट ऑब्वियस, 9 इज नॉट इक्वल टू 0. जंप इफ नॉट इक्वल टू 0, अगर 0 के इक्वल नहीं है तब आपको क्या करवाना है, जंप करवाना है. और जंप कहां पर करवाना है, दैट इज बेसिकली डिफाइंड ओवर हियर, द नेम ऑफ द लूप. अब जो यहाँ पर मैंने अगेन लिखा है, इट्स नॉट लाइक कि आपको यहाँ पर अगेन ही यूज करना है, यू कैन यूज एनी नेम ओवर हियर. लाइक आप अपना खुद का नेम भी लिख लीजिए, दैट विल ऑल्सो वर्क आउट, बट इन दी प्रोग्राम यू हैव टू डिफाइन दैट लूप. ओके, तो अगेन जहां पर भी होगा तो ये इंस्ट्रक्शन वहां पर क्या करा देगी, जंप करा देगी. अभी प्रोग्राम को भूल जाइए कि हम कौन सा प्रोग्राम कर रहे थे, सिर्फ इस इंस्ट्रक्शन को समझिए कि इस इंस्ट्रक्शन का मीनिंग क्या है. डिक्रीमेंट एंड जंप इफ नॉट इक्वल टू 0, कहां पर जंप कराइए, लाइक अगेन पे जंप कराइए, लाइक हमने अगेन यहीं पर स्पोर्ट स्पेसिफाई किया था. दिस आर दी प्रोग्राम्स इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन. इसी तरीके से ही हमारे पास हर इंस्ट्रक्शन होते हैं, और इसी तरीके से हमारे पास डिफरेंट कंडीशंस और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं आपके बनते हैं इंस्ट्रक्शंस को ऐसा यूज करके. मैम तो जैसे हमारे पास फॉर लूप था, फॉर लूप में डिक्रीमेंट हाँ करते जी, हाँ थे, जी, हाँ वैसे ही कर जी. रहे हैं ना इसमें.
हाँ बिल्कुल वैसा ही है। लाइक 4 में आप इंक्रीमेंट भी कर सकते हैं, डिक्रीमेंट भी कर सकते हैं, बट दिस इंस्ट्रक्शन इज फिक्स फॉर द डिक्रीमेंट पर्पस ओनली। वहां पर भी आपके पास फॉर लूप में एक कंडीशन होती थी कि आपको किस कंडीशन तक लाइक हाईएस्ट वैल्यू लेनी है, और उस हाईएस्ट वैल्यू से आप क्या करते रहते थे, डिक्रीमेंट करते रहते थे आप वैल्यू को। और कंपैरिजन होता था कंडीशन के अकॉर्डिंग। अगर तो कंडीशन स्पेसिफाई सेटिस्फाई हो रही है, देन यू हैव टू अगेन शिफ्ट अगेन शिफ्ट अगेन शिफ्ट इन द फॉर लूप। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं रहती है, तब वो क्या होता है, फॉर लूप से एग्जिट कर जाता है। सो ये आपके पास बेसिकली है ही लूप। तो आपके पास जो भी लूप्स होती हैं वो एक ही वे में वर्क करती हैं, बट डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट कंडीशन। लाइक आपके पास व्हाइल लूप रहती है, आपके पास केस स्टेटमेंट्स रहती हैं, आपके पास इफ एल्स लूप रहती हैं। तो दैट डिपेंड्स अपॉन द कंडीशंस कि आपके पास इफ में वो कैसे वर्कआउट करती है लूप, केस के केस में आपके पास कैसे स्टेटमेंट्स में एक स्टेटमेंट को लेफ्ट करके आपके पास डिफरेंट पर्टिकुलर कंडीशन के अकॉर्डिंग वो क्या कर जाता है, जंप करता है। सिमिलर टू दैट दिस इंस्ट्रक्शन विल वर्क आउट लाइक डिक्रीमेंट एंड जंप इफ नॉट इक्वल टू जीरो। तो आपके पास R2 की वैल्यू हुई 10, 10 के बाद डिक्रीमेंट हुआ 9, 9 नॉट इक्वल टू जीरो है, नहीं जीरो के इक्वल नहीं होता, तो वो कहाँ जंप करेगा, जहां पर हमने ये स्पेसिफाई किया हुआ। क्या स्पेसिफाई किया हुआ यहाँ पे अगेन, तो वो कहाँ पर जंप कर जाएगा, यहाँ पर। फिर से ये लूप चलेगी आपके पास, फिर से वो चेक करेगा R2 की वैल्यू। R2 की वैल्यू क्या हो चुकी थी लास्ट टाइम आपके पास, 9, 9 में क्या करेगा, डिक्रीमेंट करेगा, 9 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8, 8 को फिर से चेक करेगा कहीं जीरो के इक्वल तो नहीं है, नहीं जीरो के इक्वल नहीं होता है। जीरो के इक्वल नहीं होता है तो वो क्या कर जाएगा, फिर से जंप कर जाएगा। कहाँ पर जंप कर जाएगा, जो लूप यहाँ पर आपने स्पेसिफाई किया है, तो वो यहाँ पर दोबारा से क्या कर जाएगा, जंप कर जाएगा। अगेन आपके पास ये R2 की वैल्यू चेक करेगा, 8 है, 7 हो जाएगा, 7 नॉट इक्वल टू जीरो होता है, दोबारा से जंप करेगा। तो सिमिलरली 7 के बाद 6 हो जाएगा, 6 जीरो के इक्वल नहीं होता है, फिर से जंपिंग होगी, 5 होगा, 5 नॉट इक्वल टू जीरो, 4 नॉट इक्वल टू जीरो, 3 नॉट इक्वल टू जीरो। जंप हो रहा है, R2 की वैल्यू दोबारा से चेक हो रही है, 2 हुआ, दोबारा से R2 की वैल्यू चेक हुई, 1 हुआ, दोबारा से R2 की वैल्यू चेक हुई, 1 के बाद जब दोबारा से यहाँ पर एक वैल्यू का क्या हुआ, डिक्रीमेंट हुआ, नाउ द वैल्यू इज जीरो। Now the value is zero. अब zero is again compared with zero. Now zero is equal to zero. पहले आपके पास not equal to zero. जंप हमें तब कराना था, जंप इफ नॉट इक्वल टू जीरो। अगर जीरो के इक्वल नहीं है तो जंप करवाइए, बट यहाँ पे आपके पास जीरो इज इक्वल टू जीरो है, इट मीन्स अब जंप नहीं होगा। जंप नहीं होगा तो इस इंस्ट्रक्शन के आगे वाली जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होगी, that will be executed, that will be executed. So this is how these instructions will work out here. Any doubt to anyone in this instruction, because we are going to use this instruction in number of programs, so it becomes difficult for me to revise that again after in the next lecture. So if you are having any doubt now, you can clear it out. Yes, Jasprit. नो मैम। जसप्रीत, क्लियर है। जसप्रीत जरा एक्सप्लेन करेगी। Okay, fine. So this is the instruction, that is DJNZ R2 comma again. So your homework is to you have to do this program. आपको फर्स्ट क्लियर करना है एक्यूमुलेटर को। आप लाइक एंड भी कर सकते हैं बाई बाकी सिंपली आप एक्यूमुलेटर में ये वैल्यू मूव करा सकते हैं, लाइक मूव a कोमा हैश जीरो। दिस विल आल्सो क्लियर द कंटेंट ऑफ द एक्यूमुलेटर। आपने ए के अंदर डायरेक्टली क्या कर दिया, जो भी वैल्यू थी दैट विल बी ओवरराइटेड बाय दिस वैल्यू, दैट विल बी यूज्ड टू क्लियर द कंटेंट ऑफ द एक्यूमुलेटर। बाकी आप एंड से करिए या फिर एक्सोर से कीजिए, यू कैन यूज दैट आल्सो। नेक्स्ट आपको वो क्या करना है, ऐड 3 टू द एक्यूमुलेटर 10 टाइम्स। आप इस मेथड से भी कर सकते हैं। आपने लाइक ए में डाल दी वैल्यू जीरो, ऐड के लिए आपके पास ए डबल डी वाली इंस्ट्रक्शन यूज होती है यहाँ पर। लाइक अगर आप जब भी ऐड कराएंगे तो आप क्या करेंगे, ऐड। आप फिर एक तो इस तरीके सिंपल वे से आप इसको करेंगे। अगर आपका हो जाता है तो आप इसकी फोटोग्राफ्स में से शेयर कर देंगे, आई विल चेक आउट योर प्रोग्राम। बाकी सिंपल प्रोग्राम करने के बाद आपको सेकंड यही सेम प्रोग्राम डीजे एग्जेड इंस्ट्रक्शन से भी करके देखना है, बिकॉज दिस दिस इंस्ट्रक्शन विल रिक्वायर द लेस नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस।
तो इससे जो प्रोग्राम बनेगा दैट विल बी मोर एफिशिएंट प्रोग्राम. तो दिस इज योर होमवर्क. Rest we will discuss in our next class. Any doubt you can ask. मैम जो ये फर्स्ट मेथड है इसमें तो हाँ मैम जी, लूप हाँ लगा जी, के एडिंग एडिंग की हुई है। हाँ जी, हाँ जी. और मैम इसमें दो मेथड तो आपने बता दिया, हमें एक वो एरे यूज करके भी कर सकते हैं कैसे? बाकी माइक्रो कंट्रोलर में आप एरे यूज नहीं करते हैं, यहाँ पर ऐसे इंस्ट्रक्शंस नहीं है एरे की आपके पास. अच्छा, ठीक है, दो ही ओके. मेथड। ठीक। हाँ जी. एरेज का कोई भी कंसेप्ट नहीं रहता है आपके पास माइक्रो कंट्रोलर के अंदर. ओके, एनी डाउट टू एनीवन? Okay, so I am just stopping the recording.